ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ମାସେ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ବାକ୍ୟଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, 10 ଜଣ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ଏହି ବିଦେଶୀ ଜଣକ ଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସକଳ ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ଗୌରବ, ପରାକ୍ରମ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ହେଉ। ହେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣ କର। କାରଣ ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ତୁମେ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବେ। ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ମୋର ମୁଖ ଜୀବ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଜୀବନଯାପନ କି ପ୍ରକାର କରିପାରିବୁ সেই ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ସେ ଆତ୍ମାକୁ। ଏ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କୃତଜ୍ଞତାର କର୍ମ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପର୍ବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚକୁ ବହିଯିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା। ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ପୋଡ଼ିଦେବ, ଉତ୍ତାପ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାନବ ଜାତିର ଧର୍ମ ହେଲା ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରୂପ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସାହାଯ୍ୟ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପାଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କାରଣ ରୋମିଓ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହାକୁ ତାହା ଦିଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ କର। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବାକ୍ୟ କହେ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 69 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ଏବଂ 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଳଦ ଏବଂ ମେଣ୍ଢାର ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ଏଭଳି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଭାବରେ କଷା ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, କଣ୍ଠ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କଲେ, ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳି ସ୍ୱରୂପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଏ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 1700 ବର୍ଷ ସହିଲା ପରେ ଜୁନ ମାସ 16 ତାରିଖ 1665 ସାଲରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲେ, ମାର୍ଗାରେଟ ମେରୀ ଆଲେକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୱୀ, ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାର୍ଗାରେଟ ମେରୀ ଆଲେକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମାର୍ଗାରେଟ ଦେଖ ଏ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ
सारा मानव जाति मोर प्रेम से प्रचुर भाव भरपूर रही तुम मुंड मो पूरा अवधि रख देख हृदय रे मानव जाति मोर प्रेम केते उछली पड़ुची प्रभु जीशु दिव्य दर्शन दे प्रकाश कले तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने से केड़े बड़ आम धन्यवाद पदे दे पारुन केड़े बड़ घोर अन्याय कर आज्ञा गोटे कुकुर छुआ को बिस्केट गोटे फिंगी देले सारा जीवन सारा कुकुरटे लांगड़ हल थी जीव से पाद चाटू थी से कुकुर हेले से कृतज्ञ कौन जाने आम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुई शिक्षा दीक्षा पाइला परे अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देवाई आम जापारू आम अवहेला कर चलीचु तेणु विलंबर हेले 1856 साल रे पुण्यपिता पिय नवम तांकर स्वीकृति पर ए दिव्य हृदय प्रभु जीशुଙ୍କର दिव्य हृदय को कृतज्ञ देवाई दिव्य हृदय पर्व उपस्थापन करागला एवं जे जो साध्वी मार्गारेट मेरी आलेको जो दर्शन देले प्रभु जीशु तांकर दिव्य इच्छा प्रकाश कले जे प्रति वर्ष दिव्य हृदय उपासना करने दिव्य हृदय पर्व पालन करा जाऊ दिव्य प्रसाद आराधना करा जाऊ घरे घरे प्रभु जीशुଙ୍କର दिव्य हृदय रखी भक्ति प्रदर्शन करने से दिव्य इच्छा प्रकाश कले से वर्ष ठारू 1856 साल ठारू पुण्यपिता निर्देश प्रकार ए दिव्य हृदय पर्व पालन करने आमर रोमान कैथोलिक धर्म रे आरंभ करा ए दिव्य हृदय उपासना बा दिव्य प्रसाद आराधना स्नेहर भाई भाई माने कैथोलिक धर्म मंडली व्यतीत अन्य कौन सी मंडल आपण मैंने देखापी पाइबे ना तेरे स्नेहर भाई भाई माने से प्रभु जीशु को आम जो दिव्य हृदय पर्व पालन करने जीशु आदेश देले से वर्ष ठारू प्रत्येक घरे गोटे गोटे प्रभु जीशु दिव्य हृदय रखी उपासना करने मासर प्रथम शुक्रवार पालन करने विशेषकर सबु शुक्रवार दिन प्रभु जीशु दिव्य प्रसाद आराधना करने विषय एवं वर्ष थरे ये जो दिव्य हृदय पर्व पालन करने पुण्यपिता आदेश पर ठारू से वर्ष ठारू आमर ये पर्व पालन करवा आरंभ कर वर्ष जून मसरे 27 तारीख आम यही पर्व पालन करने को जाऊँ तार अर्थ है प्रभु जीशु निर्देश थिला जे जीशुଙ୍କର शरीर रुधिर पर्वर परवर्ती शुक्रवार दिन ही ए पर्व पालन करने आमको आदेश दि जाए तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने यही समय कहे मुझे जे प्रभु जीशुଙ୍କର प्रेम लगे आम प्रेमर प्रतिदान स्वरूप आराधना उपासना करवा केवल वाक्य आम करवा नहीं खाली स्तुति प्रशंसा कर यथेष्ट हम ना खाली पिता और पुत्र पवित्र आत्मा गौरवान्वित हो दिन को 40-50 थर कहले यथेष्ट हम ना कारण प्रभु जीशु कहती माथ्यू सुसमाचार 15:8-9 कहती ए जनता मत केवल ओठरे मुहरे प्रशंसा करती किंतु से हृदय बहु दूर अच्छा एमाने वृथारे से मोर आराधना करती तेरे स्नेहर भाई भाई प्रभु जीशु मध्य कहती जे प्रथम जॉन 5:3 पदरे वाक्य कहे धर्मशास्त्र कहे ईश्वर को प्रेम कर अर्थ है आज्ञा पालन करवा एवं प्रथम जॉन आप 4:20 कहे प्रतिवासी को प्रेम करो बोली परमेश्वर देथिबा आज्ञा पालन न करी जदि केही मो ईश्वर को प्रेम करुच्ची बोली कहे सी मिथ्यावादी बोली हम कह जाए तेरे स्नेहर भाई भाई माने आम दिन में 10 थर 15 थर पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरवान्वित हूँ बोली कही आम खाली स्तुति प्रशंसा खाली मुहरे कले यथेष्ट हेनी वास्तविक भाव में प्रभु जीशु को जब आम प्रेमर प्रतिदान स्वरूप गौरव देवा चाहूँ स्तुति प्रशंसा करने चाहूँ ताहले जेतेबेले जेतेबेले आज्ञा आम पालन करूँ से ही प्रभु को आम स्तुति प्रशंसा गौरव दि जाए कारण ये देखो आप जन सुसमाचार 15:7, 8 और 10 पदरे कौन कहती आपणकर जन सुसमाचार 15:10 पदरे प्रभु जीशु निजे कहले जेतेबेले तुमे मोर आज्ञा पालन करिवो सेतबेले तुमे मोर प्रेमर अवस्थान कर एवं मोर वाक्य तुम ठारे अवस्थापन करे एवं से ही आपणकर जन 15:7-8 प्रभु कहती जे जेतेबेले आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य पालन करूँ आम प्रभु ठारे अवस्थान करूँ एवं तांकर वाक्य आम ठारे अवस्थापन करे से ही समय आम जहाँ मागो परमेश्वर पिता आम मंजूर करती एवं आम जीवन आम प्रचुर फल उत्पन्न करें तद्वारा प्रभु गौरवान्वित हमें तार अर्थ है आम वाक्य पालन कले ही आम जीवन में आश्चर्य कर्म साधन हुए फल फल फले एवं तद्वारा ही प्रभु प्रचुर फल फलवा द्वारा ही प्रभु गौरवान्वित हूँ सेतबेला आम परमेश्वर प्रकृत शिष्य शिष्या जीशु प्रकृत शिष्य शिष्या गणित होता तेरे स्नेहर भावी मैंने एवं
तेबे परमेश्वर को गौरवान्वित करने को हेले आमे तांकर आज्ञा पालन करने को पड़े एवं आज्ञा पालन करने को हेले हमको किछि ना किछि कष्ट बा तकलीफ बा किछि समस्या बा किछि पेन नेबा को मुंडेबा को पड़े बिना कष्ट विष जंत्रण आम के प्रभु आज्ञा आम पालन कर कही हेबनी तेरे स्नेहर भाई भाई अन्य भाषा कहवा गले आमर दुख जंत्रणा आज्ञा पालन करने आमर दुख जंत्रणा जिते अधिक हेबो सेते आमर आज्ञा बहता हेबो एवं सेते परमेश्वर गौरवान्वित हेबो एई जेपरी आपण देखंतु जॉन सुसमाचार 13 अध्याय 30 एवं 31 रे गोटे एग्जांपल सब आम देखुचु से जॉन सुसमाचार 13 अध्याय 30 31 पदरे प्रभु जीशु तांकर अंतिम भोजन दिन कहले देख तुम मान मध्य मत जड़े धरई देव शिष्य मैंने पचारे प्रभु मु कि समस्ते पचारे जीशु कहले पान पातर रोटी खंडे बुड़े मुझे रोटी जहाँ को देवी सी मत धरई देवे एवं प्रभु जीशु रोटी खंडे पान पातर बुड़ेले बुड़ो बुड़ो सी जुदास को देले एवं जुदास पाप चिंता भितर थी से रोटी खंड ग्रहण करू करू सांगे सांगे बाहर को चलीगला जीशु को बिकी देवाई धरई देवाई से समय आप देखु जॉन सुसमाचार 13 अध्याय 31 पद सांगे सांगे प्रभु जीशु कहले वर्तमान मनीष पुत्र गौरवान्वित हो सारी एवं मो ठारे पिता परमेश्वर गौरवान्वित कारण प्रभु जीशु जानिले जे पितांकर आज्ञार पूर्णांग करने प्रभु जीशु क्रूस जंत्रणा सहिबाई एवं क्रूस उपर जीवन देवाई प्रस्तुत हो सारी तेणुक आज्ञा तार पूर्णांग करने प्रभु जीशु सबकिछ जंत्रणा दुख कष्ट एवं क्रूस मरवाई से प्रस्तुत है से प्रभु जीशु कहले वर्तमान प्रभु जीशु गौरवान्वित हो मनीष पुत्र गौरवान्वित होती एवं मनीष पुत्र ठारे पिता परमेश्वर गौरवान्वित होती से प्रभु जीशु कहले आप माथ्यू फिलिपियो 7:8 कहे प्रभु जीशु एते आज्ञा बहले जे क्रूस मरण पर आज्ञा बहले एपरी जे क्रूस उपरे मरण पर्यंत प्रभु जीशु आज्ञा बहले एवं से प्रभु जी फिलिपियो 7:9 एवं 11 लिखाई तेणु परमेश्वर प्रभु जीशु को गौरवान्वित देवाई सबू नाम ठार श्रेष्ठ नाम देले जेपरी से नाम रे समस्त जानू पातिबे एवं सकल जिभा जीशु को ख्रीष्ट पर स्वीकार करेंगे तार अर्थ है आम देखुचु आमर आज्ञा बह आमर दुख जंत्रणा जिते अधिक हेबो सेते प्रभु गौरवान्वित हेबो आज्ञा पालन बिना प्रभु के गौरवान्वित हेबे नहीं स्नेहर भाई भाई तेरे स्नेहर भाई भाई माने आसंतु आम देखा जे आप देखु आपणकर माथ्यू 26:40 प्रभु जीशु कहले तुम्हें कौन मो घंटाए अपेक्षा कर प्रार्थना कर पार ना जीशु मुह खोली कहला आज भी आम दिव्य प्रसाद आराधना रे 1 घंटा मोबाइल बंद करी घंटाए दिव्य प्रसाद सम्मुख बसी आराधना कर पेन बा कष्ट बा जंत्रणा नेबापी आम प्रस्तुत ना तेरे स्नेहर भाई भाई माने आम देखुचु जे आपणकर प्रथम वंशावली 16:29 लिखा जाइए आमर धर्म है मनुष्य जातिर धर्म है प्रभु स्तुति प्रशंसा करी गौरवान्वित करने ईश्वर को आमर कर्म द्वारा आमर वाक्य द्वारा आमर चिंता द्वारा आमर सब कार्य द्वारा परमेश्वर को गौरवान्वित करवाटा आम सर्वश्रेष्ठ धर्म तेणु देखो से प्रेरित पुस्तक 12:23 प्रकार राजा हेरोद ईश्वर को गौरव न देवारु कौन अवस्था है आप देखिथे जड़े स्वर्गीय दूत आसी खड़गरे आघात कले एवं से आघात सुखिला नहीं पोक होगी मरीगले दोष थिला हेरोद राजा दोष थिला जे ईश्वर को गौरव से देले ना तेरे स्नेहर भाई भाई माने आम देखुचु रोमियो 1:21 पद एवं 24 ରୁ 28 जदि आम देखा आपण रोमियो सभ्यर लोक मैंने शिक्षित धार्मिक लोक थिले किंतु से परमेश्वर जानिबा परे चिन्हबा परे मध्य ईश्वर को गौरव देले ना स्तुति प्रशंसा आराधना कले नहीं तेणु आम देखु रोम 1:24 और 28 देखु तेणु परमेश्वर से एक कुत्सित कदर्य पाप रे पड़ी विनष्ट छाड़देले से कुत्सित कदर्य पाप है आपणकर होमोसेक्सुआलिटी बा समलिंगी यौवन पापपूर्ण कार्य पतित हो से विनष्ट छाड़देले तेज स्नेहर भाई भाई मैंने आम जेबे जेबे आम परमेश्वर आज्ञा अक्षर अक्षर कर्म रे पालन करू से समय आम जीवन रे आश्चर्य कर्म साधन हुए एवं से आश्चर्य कर्म साधन द्वारा ही परमेश्वर गौरवान्वित हूँ यहीपरी उदाहरण स्वरूप आप देखुचे आम जे
द्वितीय राजावली 5:10 और 14 एटा लिखा जाइछि जे सीरियार आर्मी कमांडर नामन ताकर देहरे सारा देह सार धड़ा गला कुष्ठ बेमार है घरे गोटे जिहुदी दासी थिला से कहले प्रभु आमर इस्राएल जुदाया देश जड़े एलाइसा भाववादी अच्छा आपड़ जदि जी से पूर्णांग भाव सुस्थ करने सक्षम एवं कथार विश्वास कर नामन रथ धरले सैन्य सामग्री धरले जिनस सब धरी एलाइसा भाववादी पाक गले एलाइसा भाववादी कहले तुम जाओ जर्दान नदी में 7 थर बुड़ी की आस से प्रथम अमंग होते किंतु जो दासी अनुरोध कले दासी कथा मानिले एवं एलाइसा भाव कथा विश्वास कले कथा मानी जो जर्दान नदी में 7 थर बुड़ू बुड़ू से जो नामन आर्मी कमांडर जो नामन सीरिया नामन बा सीरियार आर्मी कमांडर नामन देहरे कुष्ठ रोग पूरा सुस्थ है एवं देखु ए सुस्थता द्वारा परमेश्वर विजातीय देश सीरिया देशर सारा देश में परमेश्वर गौरवान्वित है तार अर्थ है मुझे रिपीट कर कहूँ जेबे जेबे आम परमेश्वर आज्ञा पालन करवा अक्षर अक्षर पालन करवा आमर आज्ञाबहता द्वारा ही आम जीवन में आश्चर्य कर्म साधन हुए एवं ए आश्चर्य कर्म द्वारा ही परमेश्वर गौरवान्वित हुए आमे खाली प्रभु को स्तुति हो प्रशंसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरवान्वित हूँ बोले हेब ना आम स्तुति प्रशंसा आराधना करवा सत कि से यथेष्ट हेनी आम प्रभुंर वाक्य को अक्षर अक्षर पालन करवा तेबे आम जीवन में आश्चर्य कर्म साधन हे से मिराक्लेस द्वारा ही पिता परमेश्वर गौरवान्वित हूँ प्रेज द लॉर्ड तेबे स्नेहर भाई भणी माने जेमती नामन सुस्थता द्वारा पिता परमेश्वर से दिन सीरिया देश सारा विजातीय देश में परमेश्वर गौरवान्वित हो कर्म प्रकाशित है तेबे अवशिष्ट विषय आम वॉल्यूम 2 रे आम शुणापी जावा तेणु आपण मैंने वॉल्यूम 1 रे सुंदर भाव में शुणी समस्त को धन्यवाद करुछु प्रेज द लॉर्ड।